Hare Krishna, good evening and welcome all of you all for our Saturday evening Bhagavatam class. So we are in the last leg of our Bhishma Stuti. In fact, we completed Bhishma Stuti last week. हम लोग last week Bhishma Stuti complete किए. So now we can go a little fast because the speed at which we are going is very slow. अभी तक 9 chapter आज खत्म होगा 9 chapter and almost I think it's a year. We are still on 9th chapter Bhagavatam. अभी तो first canto अभी 12 cantos पूरा complete करना है. So we have to rush a little. So इस lifetime में we will be able to complete with its understanding because अभी तो एक एक प्रसंग जो आएगा आगे second canto से all the different प्रसंग will come, various leelas of various incarnations that will take lot of time. So it's better we go a little fast. So we'll have a lot of reading. But before we go, first recap of what we understood. हमने क्या समझा last time भीष्म स्तुति के बारे में, some crux, some short crux. ये लीला सबसे भीष्म पिता आपने कहा था कि what is the most important thing, two important things about this all of them are भीष्म पिता हमारे दो लोग lying on the bed of arrows, इनको पेन इतना हो रहा था लेकिन इच्छा मिली होने के बावजूद उन्होंने भगवान के लिए वेट किया कि वो आएंगे. Correct. Okay. And दूसरा एक इच्छा मृत्यु थी. दूसरा what was the greatness of Bhishma Stuti? For the fraction of second, he got the full attention of God. Yes, he got full focused attention. जब वो रथ का पहिया लेके भाग रहे थे तो भीष्म पिता के अलावा भगवान को और कुछ दिख नहीं रहा. So भगवान it was one to one, eye to eye contact or one to one contact. It was like दो प्रेमियों के बीच में पिक्चरों में दिखाते ना, दो प्रेमी भाग के आते हैं. तो यहाँ पे दो प्रेमी वापस वाकई में भाग रहे थे, बट यहाँ पे दो प्रेमी कौन थे? एक भक्त और एक भगवान. They were coming toward charging. He was charging towards him. मैं जाना है उसके पास. He was charging. So that is what is the speciality of. That is what is the speciality of Bhishma Stuti. See, why? What makes God special? भगवान को स्पेशल क्यों बनाया? याद रखना. God is special because of one important factor, और वो factor है that he is not just Bhakta Vatsal. Bhakta Vatsal का पूरा understanding क्या है? What is the meaning of complete understanding of Bhakta Vatsal? Yes, Jigar Prabhu, tell me. Who is Bhakta Vatsal? तो उसका मतलब जो भक्त जो चाहता है उसके हिसाब से वो चलते हैं. Okay, very good. और yes, fast. Bhakta Vatsal, whatever Bhakt is desiring for, God becomes that. God becomes that. ठीक है. और gives that. Yeah. That is materialistic. Yes, बोले. What is Bhakta Vatsal? He loves his bhakts more than himself, and उनके लिए he can do anything. Like He can do anything. भक्त की वाणी उनके लिए सर्वोपरि. Okay. और हाँ आप बोलिए. He's more concerned about the devotee. हाँ, concern कैसा? What makes him special? What makes him special? क्या है उनके अंदर जो खास है? Reciprocation. हाँ, क्या है? What is the reciprocation? Please understand. That is what we are going to read in today's full class. हम लोग जो आज भागवतम पढ़ेंगे उसमें आपको वो परिस्थिति समझ में आएगी. मैं अभी पहले एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि पढ़ते वक्त आपको आसानी होगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर भगवान टू सॉल्व सम प्रॉब्लम. समझो कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है या आपके यू आर स्टक. लाइक एग्जाम्पल गजेंद्र का पांव फंस गया. भगवान आगे he could have cut and then just gone. I've solved a problem. You've seen Spider-Man, Superman. क्या करता है? Someone is stuck in the elevator or someone is falling down. The Spider-Man comes, Superman comes, just lifts him and drops him, and then zoom, he flies off. मगर भगवान कभी ऐसे भागते नहीं. He stays with his devotees. That's what makes God different and special. That's the special. उसको अभयदान देते हैं. अभयदान कैसे होता है? जस्ट वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से अभयदान नहीं हो रहा है.
अभयदान जब हो रहा है, देन जब भगवान उसके साथ रुकते हैं, he stays with him. Can anyone give an example? Yes. He could have just killed हिरण्यकशिपु, बाय बाय मैं जा रहा हूं, जाना है, काम बहुत है, बहुत काम है मेरे पास, जाना. He didn't go. He waited. Remove all the fear in the heart of, you see, any Leela of us. He doesn't just finish off his work and runs away. He waits, and that is what he does special with his devotees. हम लोग क्या सोचते हैं, भगवान हाँ ठीक है, मेरा दुश्मन मर गया, अभी आप जाओ. But that is what makes युधिष्ठिर महाराज special. इसके लिए युधिष्ठिर महाराज special है. उनका एक नाम आएगा, अभी आज के श्लोक में पढ़ेंगे, अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु नहीं. ओके, लेट्स रीड. सूतो वाचन स्टार्ट होगा. जस्ट रीड द ट्रांसलेशन फटाफट, आज बहुत रीडिंग करना है. सो ऑल ऑफ यू कीप योर बुक्स रेडी. ओके, आई थिंक 47 ना, वर्स नंबर 43. ओके, स्टार्ट. Sutta Goswami said, thus Vishmadeva morphed himself in the super soul, Lord Shri Krishna, the supreme personality of Godhead, with his mind, speech, sight and actions, and thus he became silent and his breathing stopped. Then, so that is, what does this mean? Finally, after praising, glorifying the Lord, now he has become silent. When did he start the glorification? When this Uttarayan started. फिर उन्होंने भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया और मति भगवान के पास रखा, और भक्ति भी ऐसे की कि भगवान को आना पड़ा. That is what is their actual bhakta. No, पार्ट डिवोशन जो करते हैं ना, मतलब वैसे अभी मैंने बोला ना, सैटरडे टू सैटरडे वाला भक्ता. सैटरडे भगवान हाँ कैसा है, ठीक है ना, रेस्ट ऑफ द वीक नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. ऐसे भक्त के लिए भगवान को बोलेगा अच्छा ठीक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सेवा भजाम्यहम. सो लॉर्ड सेज ओके, आई विल डू दैट. बट फॉर वन हु इज क्लोज रिलेटेड, फॉर हिम ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द लॉर्ड. फॉर हिम लॉर्ड इज नेवर लॉस्ट, एंड फॉर हिम लॉर्ड जो प्रॉमिस किया ना कि कभी भी मेरा भक्ता कभी भी तकलीफ में नहीं आएगा, या आया तो मैं रहूंगा उसके साथ. What more do you want? भीष्म पितामह का तकलीफ कम नहीं हुआ, the pain was there, but who came and gave him the darshan, the ultimate goal of every human being, अंते नारायण स्मृति ही, ये होना सबसे बड़ी बात है. और अंते नारायण स्मृति के लिए पूरा जीवन उन्होंने तैयारी की थी. We have also got to prepare more seriously. Mind you, our preparation is also not that डिटरमाइंड. अभी तक हम लोग इतना दृढ़ता से हम लोग ने भक्ति नहीं की है. यस, नेक्स्ट. नाउ टुडे वी गो टू डू लॉट ऑफ रीडिंग. ओके, फास्ट. Knowing that Vishwadeva had merged into the unlimited eternity of the Supreme Absolute, all present there became silent like birds at the end of the day. Then next. Thereafter both men and demigods sounded drums in honor, and the honest royal order commenced demonstrations of honor and respect, and from the sky fell showers of flowers. This is the actual glorious death. बोलते ना, मौत हो तो ऐसा हो जब भगवान स्वयं आ जाए आपको लेने के लिए. देवी देवताओं का पुष्प वर्षा हो रही है आपके ऊपर. What else do you want? This is what is glorious death. This is what a devotee always desires, rather than material desires. Material desires को क्या डिजायर करना, वो तो आते नहीं. नारद मुनि क्या कहते हैं, दुखवत अन्यथा सुखम. आप भक्ति करो ना करो, सुख और दुख आपके कर्मों के हिसाब से आएंगे ही. जैसे आप दुख को रोक नहीं सकते हो, सुख को भी रोक नहीं सकते हो. कोई बोल सकता है मेरा सुख आ रहा है मुझे रोकना है. सुख भी अपने आप आएगा, दुख भी अपने आप आएगा. सब अपने ही कर्मों का कमाया हुआ फल है, किसी और का नहीं है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेनेवर हैप्पीनेस कम्स थिंक कभी मैंने कुछ किया, या सबसे बेहतर वही चीज रहेगा कि आप उसको
भगवान के प्रति ये समझ के चलना कि भगवान की कृपा है, इतने की लायकियत नहीं है फिर भी मुझे मिला है. If one who is in that mood, जो ये सोच के बैठा है, वो जीवन में हमेशा सुखी रहेगा. There are two ways of looking at the thing, right? A glass half empty and a glass half full. नहीं, बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर ये अच्छी तरह से बताते हैं, बट शास्त्र में तो पहले लिखा जो मिला आपने उसको प्रभु की कृपा से मिला है. अगर ये सोच लिया तो आप सुखी. अगर आप सोचोगे नहीं यार इतना ही मिला, पड़ोसी को ज्यादा दिया, मुझे कम दिया, तो आप so happiness doesn't lie only in perceptions. It also lies in how you get God in your life. See, the whole purpose of Bhagavatam is what all resources you have been given has to be used for God. जो भी आपको दिया गया है, जो भी रिसोर्स को क्या बोलते हैं, संसाधन जो आपको मिला है, वो आपको भगवान को समर्पित करना है. आपके पास संसाधन क्या क्या है बदले? हाँ बताइए, आपके पास संसाधन क्या है जो आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं? मन, मन, कर्म, वाचा. ठीक है, कर्म तो ऐसे भी कर ही रहे हो, ठीक है. और मन तो भगवान छोड़ के सब जगह लगता है, पूरा बढ़िया लगता है ना. और क्या संसाधन है आपके पास? ह्यूमन बॉडी. हाँ, ह्यूमन बॉडी इज अ संसाधन. वेरी गुड. साथ में ठीक है, दैट इज ग्रॉस. इंद्रिय. सेंसेस को आप क्या लगाओगे? समथिंग विच जिसको हम हमेशा कोसते रहते हैं. काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, कोसते रहते हैं. प्रभु जी क्या करो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये सब आपको आपके संसाधन. एंड एक्चुअली भगवान ने क्यों दिया है आपको? काम आवे, डिजायर्स आवे, desire for money, desire for lust, desire for power, post. That is also lust, right? It is not lust. It doesn't mean only for the opposite sex. It is also for money, name, fame, everything. So what do you understand from this? काम का मतलब क्या है? कभी भगवान की कामना की? अब आप बोलेंगे प्रभु जी मेरे अंदर कामना ही नहीं है. भगवान की भी कामना नहीं है. भाई संसाधन दिया हुआ है, आपको इस्तेमाल करना है. यू हैव टू यूज इट इन द राइट वे, बट वी आर यूजिंग ऑल द रिसोर्सेस इन द रॉन्ग वे. मिठाई पर अभी समझे ना, कई बार कॉम्पिटिशन होता है ना, क्या है मास्टर शेफ, उसमें सब सामग्री दिया जाता है, फिर आपको कुछ खाना बनाना पड़ता है. तो उसमें आपका बस ऑप्शन क्या है? चलो आपने मीठा बनाया, चलो किसी माता जी ने मीठा बनाया, तो उसमें क्या डालेंगे आप? चीनी या गुड़ तो डालेंगे. आपने संसाधन में तो दिया है आपको, मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर, गरम मसाला, उठा के डाल दिया आपने, है? अरे किसके लिए दिया है? संसाधन है, इट इज अ रिसोर्स गिवन टू यू, बट प्रोवाइडेड इफ यू आर मेकिंग मसालेदार सब्जी, पाव भाजी, whatever it is, whatever item you are making, it depends on what you are making. What is your goal? आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके ऊपर तय करता है. आपका जीवन का लक्ष्य है अगर मीठा बनाना है तो मीठे संसाधन, काजू बादाम डालो, खीर डालो, खीर बनाओ, जो भी बनाओ. और अगर आपको जीवन में आपको बनाना है, सपोज लेट से सब्जी बनानी है या पिज्जा बनाना है, तो उस हिसाब से आप ये सामग्री लोगे. तो भगवान ने आपको सारे सामग्रियों के साथ भेजा है यहाँ पे. डोंट कर्स योरसेल्फ दैट आई हैव गॉट दीज ड्रॉबैक्स. दे आर नॉट ड्रॉबैक्स, यू आर नॉट यूज देम करेक्टली. काम हमको होता है, चाहे वो ऑपोजिट सेक्स का हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो पावर, पोस्ट, जो भी हो. लालच तो है ना हमको सबके अंदर. दैट काम, डिजायर, इंटेंस डिजायर होना किसके लिए चाहिए? कितने लोगों को भगवान की इच्छा है? भाई लिमिट के ऊपर मजा नहीं आता. दैट्स व्हाट पीपल कम एंड टेल मी, तो सब कुछ लिमिट में होना चाहिए. अरे क्या लिमिट में होना चाहिए? योर लाइफ इज फुल्ली मेंट फॉर दैट ओनली. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर जस्ट going to come in your life and going to go in due course of time.
whatever other things you are having, whatever relations, mother, father, brother, sister, wife, children, सब जिस दिन मरोगे थोड़ा रो धो के आपको खुशी खुशी जलाने जाएंगे। कोई बोलेगा, पत्नी बोलेगी नहीं नहीं इतना करवा चौथ का व्रत रखा है, 1-2 दिन और रहने दो, वो तो बोलेंगे नहीं तो वो तो चल गए, ये उनका पार्थिव शरीर है। अच्छा शब्द यूज करें, पार्थिव शरीर है, वो तो so that we are using all this karma for materialistic things which are, see if you see the science of this world, ऐसा बना है, ये दुनिया ऐसे बना है कि आपका जब मृत्यु होता है ना, ये शरीर, ये कपड़ा जो आपने पहना है वो भी छोड़ के जाना। तो जाता क्या है, आप हो क्या पहले, आप तो शरीर नहीं आत्मा हो, और आत्मा जब निकलती है वो सिर्फ अपना मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीजों के साथ जाती है। और ये तीनों चीज हमको लगाना किस पे है, और वो चीज लगाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स दिया है। तो फर्स्ट इज काम इज डिजायर फॉर गॉड, बट वी हैव डिजायर फॉर एवरीथिंग। क्रोध क्यों आता है, जब काम पूरा नहीं होता तो क्रोध होता है, ये तो अपने को फॉर्मूला सबको पता है। हाँ? कभी क्रोध आया है, अरे आज मेरे 16 माला नहीं हुए। कभी क्रोध आया है, अरे आज मैं मंदिर नहीं जा पाया। कभी क्रोध आया, आज मैंने प्रसाद नहीं खाया, मैंने कुछ घटिया कचरा चीज खा लिया। कभी क्रोध आता है, नहीं मैंने आज तक कंठी माला नहीं पहनी क्योंकि मुझे अपने आप को सेफ जोन पे रखना है, एंजॉयबल कंफर्ट जोन पे रखना है, या एंजॉयबल जोन पे रखना है। कई बार हम लोग क्यों कर रहे हैं ये सब, क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा रिजर्वेशन, और जिसके पास कुछ रिजर्वेशन होता है ना, कोई अपना बोल के कहता है कि भगवान बेचारे हिसाब किताब में 0 है। हमारे भगवान है ना, हिसाब किताब में 0 है। वो एक ही चीज जानते हैं, पूरा दो, पूरा मन दो, पूरा मन लो। ये हाफ चीज मेरे को नहीं चलती, और हम लोग हाफ देने में एक्सपर्ट है, पूरा देते नहीं। इसके लिए कभी क्रोध नहीं आता है हमको, दूसरों पे क्रोध आता है, अपने आप पे कभी क्रोध आया, कभी क्रोध आया नहीं आज मैंने मंदिर नहीं गया, आज मैं भक्ति नहीं किया, आज भगवान को स्मरण नहीं किया, भगवान को भोग नहीं लगाया, कभी क्रोध नहीं आता। झंझट ही वो प्रभु, वो सिस्टम स्टार्ट ही नहीं करना है, लफड़ा ही नहीं है ना। स्टार्ट करेंगे तो फिर पालना पड़ेगा ना। आई एम सो इंटेलिजेंट, अरे यू हैव टू यूज योर इंटेलिजेंस फॉर गॉड, नॉट टू रन अवे फ्रॉम गॉड, बट वी ऑल डू दैट वेरी नाइसली। हमारे बुद्धि, हमारा जो इंटेलेक्ट है, हम किस पे लगाते, भगवान से बचने का तरीका। हम लोग भी like how a CA or a CA, generally CAs what they do, they read in between the lines, right? कानून के बीच का जो लूप होल्स रहता है वो निकालते हैं, चाहे वो लॉयर हो या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। उसी तरह हम भी हर चीज भगवान के मामले में सब लूप होल्स निकालते हैं। क्यों, भगवान वी हैव वांट अ रीजन नॉट टू सर्व। जैसे वहां पे द रीजन इज नॉट टू पे द टैक्स, सो वी कैच द CA टू टेक आउट द लूप होल सो दैट आई कैन सेव माई टैक्स। यहाँ पे आई डोंट वांट टू सर्व गॉड, आई डोंट लव गॉड, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ गॉड, नो। तो तकलीफ यहां पे आती। दूसरी बात, काम, क्रोध, लोभ। सपोज योर डेली टारगेट इज, लेट्स से 50,000 रुपीज डे, डेली टारगेट इनकम। सपोज आपने सुबह दुकान खोला और 9 बजे दुकान खोला, 9:30 तक आपका धंधा हो गया 50,000 का, टारगेट फुलफिल्ड। शट डाउन करोगे? आप क्या बोले, दिन अच्छे आज लगता है 2-3 लाख हो जाएगा। अरे आपका टारगेट तो हो गया ना, क्यों? लोभ। और कितने लोगों को भगवान या भगवान की कथा सुनने का लोभ है? लोभ है कथा सुनने का, लोभ है भगवान का सेवा करने का। उसमें all these, use these things for catching God, your work is done. It's simple, it's easy, बहुत आसान है।
जो भी चीजें अवगुण जिसको कहते हैं वो गुण है, अवगुण नहीं है। हमने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके वो बन गए अवगुण, नहीं तो वो गुण ही है, क्वालिटीज ही हैं। हनुमान जी को गुस्सा आया, जब लंका पहुंचे गुस्सा का प्रदर्शन बहुत बढ़िया तरीके से किया, और किसके लिए किया? भगवान। हम भी गुस्से का प्रदर्शन करते हैं भगवान के खिलाफ, डायलॉग मारते हैं ना, भगवान मैंने तेरी इतनी पूजा की, तूने मेरा काम नहीं किया, है ना। पूजा ही इसके लिए करते हैं ना भगवान, ताकि आपका काम करे। इसके लिए हम पूजा करते हैं, भक्ति नहीं करते। ये अंतर है ना, भक्ति नहीं कर रहे हम लोग, पूजा कर रहे हैं। एक रिचुअल है, एक तरीका है, ठीक है, कर्मकांड का एक भाग ही है। उसी से शुरुआत करके उसी में खत्म नहीं होना है, आगे बढ़ना है। पर हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, बिकॉज काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह, क्या मोह है हमको? ये संसार सब कुछ है, ये संसारी सत्य है। वी आर इन मोह। अरे मोह करना है क्या, अट्रैक्शन करना है तो भगवान का करो। सो यूज एवरी क्वालिटी विच इज सपोज टू बी ए मिसगिविंग्स और रादर बैड क्वालिटीज या अवगुण, वो गुण ही है, प्रोवाइडेड यू यूज ऑल दैट फॉर सर्विस ऑफ लॉर्ड। राधा रानी मान करती थी, तो मान करना गलत नहीं है, पर मान तब करो जब भगवान के साथ आपका भक्ति का संबंध जुड़ जाए। मीराबाई, द डे हर हस्बैंड डाइड, उसने 16 श्रृंगार किए थे। द डे मीराबाई हस्बैंड डाइड, उसने 16 श्रृंगार किए थे। क्यों? एक्चुअल पति तो वो है ना, और वो पहले दिन से उनको शोभा देता है, क्योंकि वो पहले दिन से उनको शुरुआत से, फ्रॉम द डे वन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये मानसिक स्थिति जो होगा ना, वो व्यक्ति इस दुनिया में भगवान को प्राप्त करेगा, नहीं तो वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ही विल नेवर बी एबल टू अचीव गॉड, बिकॉज अचीविंग गॉड इज ऑलवेज देयर आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। रोड़े होते हैं जीवन में उन चीजों को प्राप्त। प्लीज रीड द नेक्स्ट वर्स। जिगर रीड द नेक्स्ट वर्स। हाँ ठीक है, यू रीड। O descendant of Bhrigu, Sanaka, after performing funeral rituals for the dead body of Bhishma Deva, Maharaja Yudhishthir was momentarily overtaken with grief. तो वापस वहां पे जितने भी लोग थे, भीष्मदेव और युधिष्ठिर महाराज, सबको थोड़ा तो दुख हुआ। दादाजी है तो फिर भी दुख तो होगा ही। या All the Greek sages then glorified Lord Shri Krishna, who was present there, by confident Vedic hymns. Then all of them returned to their respective hermitages, bearing always Lord Krishna within their hearts. नेक्स्ट जिगर। Thereafter, Maharaja Yudhishthir at once went to his capital, Hastinapur, accompanied by Lord Shri Krishna, and there he consoled his uncle and aunt Gandhari, who was an ascetic. अब धृतराष्ट्र और गंधारी क्या बन गए? साधु बन गए, डिटैच हो गए थे, मगर फिर भी कैसे साधु बने? काम के नहीं थे। क्यों? अभी भी राज्य में ही थे। दे आर नॉट लेफ्ट द किंगडम। अभी आएगा, आगे आएगा, विदुरा आके बोलेगा क्या एक कुत्ते की तरह पड़े हो, तब जाके निकलेंगे वो लोग, तब तक निकलते नहीं है। महाभारत में लिखा है। विदुर आके कहता है, उनको आके कहता है, विदुर भी तीर्थ यात्रा में गया हुआ है, फिर विदुर आता है कि उन्होंने विदुर को काफी बुरा भला बोल के भेज दिया ना, तो विदुर दुर्योधन ने बुरा बुरा बोल के भेज दिया, तो विदुर आता है। जब उसको पता चलता है, आएगा सब पूरा संवाद है, विदुर का संवाद है, भागवत में आएगा। तब विदुर आके कहता है, धृतराष्ट्र को कहता है, कुत्ते की तरह उनके फेंके हुए रोटी पे क्यों बैठे पड़े हो, जाओ यहां से। तब वो जाता है वहां से, तब तक जाता नहीं। इनको ही तुमने मारने का षड्यंत्र किया, इनको ही सब तकलीफ दिया, बट फिर भी तुम जाने को तैयार नहीं। बट फिलहाल यहाँ पे वो लोग, और कोई ऑप्शन नहीं है, इसके लिए थोड़ा साधु की तरह जीवन बिता रहे हैं। यस, नेक्स्ट। After this,
the great religious king, Maharaj Yudhishthir, executed the royal power in the kingdom strictly according to the codes of royal principles approved by his uncle and confirmed by Lord Shri Krishna. Very good. So with this we complete chapter number 9. So now we go to chapter number 10. Finally, chapter number 9 completed after a long time. So now we go to chapter number 10. Okay, start. Someone else start chapter number 10. First verse. Start. Shaunak Muni asked, after killing his enemies who desired to usurp his rightful inheritance, how did the greatest of all religious men, Maharaj Yudhishthir, assisted by his brothers, rule his subjects? Surely he could not freely enjoy his kingdom with unrestricted consciousness. So first and foremost, please understand. शौनक मुनि यहाँ पे एक सवाल से दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है. That means what? Always there should be inquiries. Always I have said, चाहे वो भागवतम हो या भगवद गीता हो, प्रश्नोत्तर है. अर्जुन वहां पे अर्जुन प्रश्न करता है और कृष्ण आंसर देते हैं. यहाँ पे शौनक मुनि पूछते हैं और सूत गोस्वामी आंसर करते हैं, या परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कोई ना कोई प्रश्न पूछते हैं. सो प्रश्न पूछना भक्त का पहला कर्तव्य. तो वो भक्ति कर रहे हैं, तभी वो सुन रहे हैं, नहीं तो वो. Here he is asking a question. After killing all his enemies who desired to usurp his rightful inheritance, मतलब उसके जो राइटफुल इनहेरिटेंस, उसका लेजिटिमेट क्या बोलते हैं, राइटफुल इनहेरिटेंस हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिकार से जो उसका जो हिस्से का जो उसका था, राजपाट जो था, वो उसने छीनने की कोशिश की. किसने? दुर्योधन. तो how did the great soul of all religious men, Maharaj Yudhishthir, assisted by his brother, rule his subjects? उसके बाद उसने कैसे राज्य किया, ये सवाल पूछा. Surely he could not freely enjoy his kingdom with unrestricted consciousness. इसका मतलब क्या है? This is actually relating to Duryodhana and Dhritarashtra, who are enjoying अनरिस्ट्रिक्टेडली. दुर्योधन सही तरह से, तो अभी बताएंगे, अभी सूत गोस्वामी बताएंगे कि कैसे, किस तरह से युधिष्ठिर महाराज रूल्ड हिज किंगडम. एंड दिस इज हाउ क्वालिटीज ऑफ ए रूलर शुड बी. एक राजा का कैसे क्या गुण होना चाहिए अब मेंशन होगा. प्लीज रीड द नेक्स्ट वर्स. Suta Goswami said, Lord Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, who is the maintainer of the world, become pleased after re-establishing Maharaj Yudhishthir in his own kingdom, and after restoring the Kuru dynasty, which had been exhausted by the bamboo fire of anger. बस युद्ध के क्रोध के आग में पूरा दुर्योधन का पूरा मतलब कौरवस जो थे सारे कौरव खत्म हो चुके थे. तो अभी भगवान कृष्ण भगवान ने इनको राज्य पे बिठा दिया. नेक्स्ट. Maharaj Yudhishthira, after being enlightened by what was spoken by Bhishma Deva and Lord Shri Krishna, the infallible, engaged himself in the matters of perfect knowledge, because all his misgivings were eradicated. Thus he ruled over the earth and seas and was followed by his younger brother. Here there is a very important line which is mentioned. It says as given by Bhishma, as spoken by Bhishma Dev. तो यह एक्चुअली अगर आप महाभारत डिटेल में पढ़ते हो तो वहां पे आता है. महाभारत में पूरा विष्णु सहस्त्रनाम के पहले पूरा संवाद है जहां पे भीष्म पितामह बताते हैं युधिष्ठिर को कि किस तरह से आपको राज्य चलाना चाहिए. So that entire thing. So उसके हिसाब से on the basis of the knowledge received from Bhishma Dev, Yudhishthira Maharaj is now running the kingdom. Please. During the reign of Maharaj Yudhishthira, the clouds showered all the water that people needed, and the earth produced all the necessities of man in profusion. Due to its fatty milk bag and cheerful attitude, the cow used to moisten the grazing ground with milk. पहला चीज, दिस इज हाउ राज्य सुखी. हम लोग बोलते हैं राम राज्य चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. ये राज्य खुश राज क्या है?
जहां अपने आप कोई चीज की अभाव ना हो, चाहे वो दूध दही का हो, चाहे वो अन्न अनाज का हो। और हम लोग का फोकस क्या है आज के जमाने में? सस्ता मोबाइल होना चाहिए, अन्न महंगा हो चलेगा, महंगा सस्ता, सस्ता हमको मोबाइल चाहिए, इंटरनेट सस्ता चाहिए, खाओगे? दैट इज आवर फोकस इन आवर मॉडर्न डे लाइफ। और फोकस इज टोटली डाइवर्टेड। वी हैव नेवर अंडरस्टूड व्हाई यू नीड ऑल दिस गुड लाइफ टू अचीव गॉड। हमको भगवान को प्राप्त करने के लिए ये पूरा चाहिए, संसाधन, अच्छे संसाधन चाहिए। मोबाइल से आप भगवान प्राप्त करोगे, वाईफाई से भगवान प्राप्त करोगे? क्या चाहो? ठीक है, you need it for communication and all, that's good. For some people it may be bread and butter, का रोजी रोटी होगा, बट भक्तों के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या संसाधन चाहिए? भगवान को भोग लगाने के लिए अन्न चाहिए, भगवान को दूध दही खिलाना चाहिए, उसके लिए दूध दही चाहिए और ये चाहिए। सो एंड दैट इज ऑल कमिंग अबेंडेंटली। क्योंकि जब राजा सही होगा ना, तो अपने आप राज्य में कोई भी प्रलय या कोई भी फैमिन या क्या बोलते हैं, सूखा, ऐसा कुछ आता नहीं है, सब कुछ बढ़िया रहता है। यस। The rivers, oceans, hills, mountains, forests, creepers and active drugs in every season paid their tax quota to the king in profusion. Very good. Next. Because of the kings having no enemy, the living beings were not at any time disturbed by mental agonies, diseases, or excessive heat or cold. He was not having any enemies in the sense, हम लोग आज देखते हैं कोई राज्य का, कोई देश का दूसरा देश के साथ दुश्मनी चल रहा है, तो एगनी किसको होता है? परेशान कौन होते हैं? लोग परेशान। और यहाँ पे वो क्या था? अजात शत्रु। The word अजात शत्रु comes in this verse. So he is अजात शत्रु। जब राजा को किसी के साथ दुश्मनी नहीं, तो प्रजा भी सुखी है, कोई हमला करने वाला ही नहीं है, ना हम करने वाले ना वो करने वाले, सुखी है। प्रभु जी, तो तब आदि दैविक आध्यात्मिक वो सब बीमारियां नहीं थी? अगर राजा सही जगह आ जाए, माता जी लिखा है रामायण में, पूरा वर्णन है, राम राज्य में कभी कोई औरत विधवा नहीं होती थी, कभी घर या खेत कभी आग नहीं लगता था, अगर लग भी जाता तो जलाता नहीं था। When the king is righteous, everything goes correct. When the king is not righteous, धर्म के हिसाब से नहीं चल रहा। कभी बेटा बाप के सामने नहीं मरता था, राम कभी बेटा नहीं मर सकता था। There are so many qualities mentioned, एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ क्वालिटीज आता है कि कोई अन्न की कमी नहीं होती थी, कोई बीमारी से नहीं मरता था, कोई बाप के जीते जी बेटा नहीं मरता था, कभी कोई औरत विधवा नहीं होती थी। सो मेनी कंडीशंस आर इट। इट इज ओनली जब राज्य में राइटियसनेस, धर्म के हिसाब से अगर राजा है, तो प्रजा को फिर चिंता करने की जरूरत। आई डोंट नो आज की तारीख में क्या कहें इसकी। ओके, कंटिन्यू। Sri Hari, Lord Shri Krishna, resided at Hastinapura for a few months to pacify his relatives and please his own sister Subhadra. See, please understand, मैंने आप लोग को क्या बोला था? भगवान का कार्य क्या है? सिर्फ आके युद्ध हो गया, अगला दिन निकल सकते थे। भाई द्वारका है, मेरे भी 16,108 पटरानियां हैं और ऊपर से बाकी कामकाज भी है मेरे, बट यहाँ ही रुके हुए, जा नहीं रहे। क्यों? उनका कार्य सिर्फ पांडवों को खतरे से बचाने से सीमित नहीं था, वहां रुक के उनको अभय दान देना कि भाई चिंता मत करो, ठीक। जैसे कोई बच्चा गिर जाता है तो माँ उसको उठाती है, उसको फिर मल्लम लगाती है, मतलब पैर धो के मल्लम लगा के, फिर बच्चा फिर भी सिसकता रहता है, उसको कुछ मिठाई देती है, चॉकलेट देती है, कुछ ना कुछ देके उसको पैसिफाई करती है। दैट इज व्हाट इज गॉड, बिकॉज ही रियली लव्स अस। He loves his devotees. He really loves his devotees. He does that. But ये बाकी के लोग, there are, I'll tell you how you get connected to God is most important. And first thing, अगर किसी व्यक्ति को भगवान से जुड़ना है ना, उसको गुरु पे विश्वास रखना चाहिए। आजकल लोग गुरु को एक, it's like they try to take him as a friend or something. ठीक है, he is also a human being like me. Please don't be under that concept. That is a wrong thinking.
एक खाटम बोल के एक आदमी था, बेसिकली ही वॉज अ चोर। उसका खानदानी फैमिली बिजनेस वॉज चोरी। उसके बाप परदादा सब चोर थे, तो ये भी चोरी करता था। एंड एक दिन जंगल में बैठा था, बैड लक, या उसके लिए बैड लक, या सोचो भगवान की कृपा। एक साधु जा रहा था, जंगल से जा रहा था, इसने पकड़ा, भाई देखा साधु है, छोड़ो छोड़ दो, साधु से क्या। तो चोर लोग भी उस जमाने में थोड़ा एटिकेट्स मेंटेन करते थे। तो आप जाओ, आप साधु। तो साधु ने पूछा तू कौन है? तो मैं चोर हूं। अरे ये तो गलत है, चोरी कर रहे हो। कोई मेहनत करके जिंदगी भर कमाता है और उस कमाई को तू लूटता है। तुरंत मैं भी मेहनत कर, कभी चोरी किया है आपने? बहुत मेहनत करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, लोगों को रेडी रखना पड़ता है, कभी कभी जान का भी खतरा रहता है, फिर भी करता हूँ, क्या करूँ, फैमिली बिजनेस है। मेरे दादाजी किए, मैंने किया, मेरे परदादाजी ने भी किया, अब मेरा बेटा भी आएगा थोड़े दिन में, उसको भी ट्रेन करूंगा, वो भी इसी धंधे में आएगा। और हम लोग में इसको बुरा नहीं मानते, अच्छा है। तो ये गलत है तो बुरे पाप मिलेगा? नहीं, पाप कुछ नहीं मिलेगा। और आपको क्या लगता है, ये भी मेहनत करके कमाने वाली चीज है, सब इसने भी बहुत प्रवचन दिया। तो वो साधु समझ गया कि ये समझने वालों में से नहीं है, कि एकदम अंदर वेन्स में घुस चुका है। तो अब क्या करें? तो ठीक है, तो खूब चोरी कर, खूब जितना चाहे उतना चोरी कर, पर एक कंडीशन, ये 4 चीज फॉलो कर। तो उसने बोला हाँ गुरुजी आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। ठीक है, मुझे गुरु मानते हैं? हाँ आपको गुरु मानता हूं। तो गुरु के 4 बात मानना हमेशा फायदे में रहेगा। ठीक है, क्या है 4 बात? कभी झूठ मत बोल, ठीक है, कभी झूठ नहीं, तू चोरी कर पर झूठ मत, ठीक। दूसरा, हमेशा साधु संतों को मिलेगा तो उनकी सेवा करना, उनका आशीर्वाद। There is second, हमेशा कोई भी मंदिर या मठ दिखेगा तो वहां जाके प्रणाम करना, कितना भी जल्दी क्यों ना हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी चीज आप चोरी करके, भले चोरी करके कमाओ, उसको भगवान को अर्पण करना। जो भी चोरी चीज करके कमाओगे वो चीज को भी भगवान को अर्पण करना, ठीक? बोला ठीक, आपका गुरु का वाक्य सिर आंखों पे। और ईमानदारी से चोरी कर रहा था। और कहते हैं ना, गुरु का एक बार आशीर्वाद मिल जाए तो धंधे में भी बरकत हो जाती है। तो इसका भी धंधा में बरकत हो गई, काफी सारा लूट मिलने लगा, पैसे मिलने लगे। और पहले तो 1-2 चेन वाले मिलते थे, अभी 10-15 चेन वाले मिलने लगे, काफी लूट कमा लिया। सब भगवान को अर्पण करता था खुशी से। एक दिन गुरुजी का चिट्ठी आया या उनका इंफॉर्मेशन आया, उन्होंने बोला देख भाई ऐसा ऐसा है, महोत्सव है मठ में और मैं चाहता हूँ आप कुछ सेवा करो। तो उसने बोला सेवा क्या, मैं चाहता हूँ ये पूरा जो अवसर है इसका मैं पूरा खर्चा मैं उठाऊं। तो सोच रहा था गुरुजी की कैसे सेवा करूं। तो बोले चलो, हमारे राजा जो है ना उनके पास अच्छे अच्छे बढ़िया घोड़े हैं, तो कोई भी एक घोड़ा अगर मैंने चुरा के बेच दिया ना तो गुरुजी का पूरा खर्चा निकल जाएगा प्रोग्राम का। जो भी प्रोग्राम रखा है पूरा खर्चा निकल जाएगा, खाना पीना सब निकल जाएगा। ठीक है, क्या अभी मैं गुरुजी का इच्छा पूरा करने के लिए गया। गुरुजी ने तो सिर्फ सेवा करने बोला, इसमें उन्होंने पूरा सेवा पूरा ही मैं करूंगा, मैं पूरा स्पॉन्सर। गया सीधा राजा का अस्तबल जो होता ना घोड़े का अस्तबल, वहां गया। तो वहां अच्छा एकदम सैनिक जैसा अच्छा कपड़ा पहन के गया। तो वहां के सैनिकों ने पूछा है कहाँ जा रहा है, रुक रुक, कहाँ जा रहा है बोल। सीधा देखा, बोला चोर हूं, चोरी करने जा रहा हूं। क्या गुरुजी ने क्या बोला था, कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना। हाँ भाई, गुरुजी का याद किया, गुरुजी ने बोला करूंगा। उसने क्या ना, चोर हूं, चोरी करने जा रहा हूं। ये लोग डर गए, बोला राजा का कोई खास आदमी रहेगा।
ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं ना, चोर हूं चोरी करके जाऊंगा। राजा का कोई खास आदमी रहेगा, हाँ आप चाहिए बुरा मान लिया, उसने नाराज हो गया, अपने को शायद बड़ा अफसर रहेगा कोई, तो ये भी खुश हो गया, देखा झूठ सच बोल रहा हूँ, गुरु जी का कृपा देख मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात भी पका नहीं हो रही, छा देखा अंदर। जैसे अंदर गया देखा 2-3 घोड़े हैं उसके महाराज के, तो राजा का सबसे प्यारा घोड़ा था, एक काला कलर का घोड़ा था, ब्लैक हॉर्स, ब्लैक स्टैलियन। तो बोला चलो इसी को ले लिया, घोड़े पे आके बैठ गया, जा रहा है। तो वापस बाहर जाते हुए देखा, अरे ये तो राजा का घोड़ा, कौन लेके जा रहा है? बोला ना चोर हूं, लेके जा रहा हूं, बेच के खाऊंगा अभी इसका पैसा। ईमानदारी से बोला, सच बोला, उसने झूठ नहीं बोला। ये बोला अरे बाप रे, बहुत गुस्सा हो गया। किसी का कोई ऐसा हिम्मत है क्या राजा का नौकर को बोलेगा कि मैं घोड़ा लेके जाके चोर हूं, चोरी करके लेके जा रहा हूं। और बोला भी, मैंने बोला था ना, सॉरी सर, आप गया खुश, ये भी खुश, चोर भी खुश। देखा ईमानदारी का जमाना आ गया, वो तो टेंशन नहीं है, जाने को मिल गया। जा रहे पीछे से, थोड़ी देर में राजा को बोला, राजा बोला मुझे बाहर जाना है, घोड़ा निकालो। तब उसको पता चला कोई घोड़ा लेके गया। कौन लेके गया पता करो, पकड़ो उसको। ये अपना घोड़ा लेके बाहर निकला, थोड़ा दूर गया, अरे गुरुजी ने दूसरा एडवाइस क्या बोला था, कोई भी चीज हो भगवान को अर्पण कर दो। तो भगवान जी ये घोड़ा आपका अर्पण किया। और फिर थोड़ा दूर गया, एक मंदिर दिखा, साधु संत बैठे थे, बोला गुरुजी ने बोला था कोई भी मंदिर में के साधु संत दिखे माथा टेक किया। सो उसने बाहर घोड़ा बांधा, सीधा अंदर गया मंदिर के अंदर। राजा के सैनिक पीछे भाग भाग के आ रहे हैं घोड़ा को पकड़ने के लिए, ढूंढने के लिए। आके देखा बिल्कुल ऐसे ही सेम जैसा राजा का घोड़ा था, बिल्कुल वैसे ही घोड़े दो, एक बाहर बंधा हुआ है झाड़ के, मतलब मंदिर के बाहर पेड़ से बंधा हुआ है। पर घोड़ा व्हाइट हो गया, काला नहीं व्हाइट। तो ये लोग छुप के बैठे थे, क्या कौन आता है देखते। ये चोर सब साधुओं को प्रणाम करके, मंदिर में प्रणाम करके बाहर आया, देखा घोड़ा व्हाइट कैसे हो गया, काला था। हाँ मैंने रामचंद्र जी को अर्पण किया, तो शायद रामचंद्र जी को सफेद घोड़े पसंद है, इसके लिए उसने घोड़े को व्हाइट किया। इतने में राजा के सिपाही आगे पकड़े, भाई कहा तू है ना, चोर है ना, तूने चोरी किया? हाँ झूठ नहीं बोल सकता, ईमानदार है। हाँ मैंने, तो ये सफेद कैसे हो गया? मैं भी कंफ्यूजन में हूं, कैसे सफेद, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये सफेद कैसे हो गया। ठीक है तो चलो राजा के पास लेके जाओ। हाँ चलो गया राजा के पास, चोर भी गया, घोड़ा भी गया, राजा के सामने खड़े हो गए। तो राजा बोला ठीक है ये मेरा ही घोड़ा है, कि मुझे डाउट है कि असली चोर और असली घोड़ा तूने कहीं और छुपा दिया है, और तू किसी नहीं महाराज आपका ही घोड़ा है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं चोर हूं तो क्या हूं, कभी झूठ नहीं बोलता हूं, और रही बात आप चेक कर लेना। तो राजा ने हाँ मेरा काला घोड़ा जो था ना, उसका जो ऊपर का जो भाग होता है ना, मेन बॉडी कॉल, वहां पे एक छोटा सा दाग था, चेक कर। जैसे गया घोड़े का बाल हटा के देखा, सिर्फ बेहोश होकर गिर गया। इतना जल्दी तो लिप अप होती तो कर नहीं सकते, पोत के तो वापस कलर लेके आ सकते, और वाकई में वो दाग था। He knew that this घोड़ा has become white. बोला तू है क्या भला भाई बता मुझे। तो उसने बोला नहीं भाई मैं चोर था, मेरे को गुरुजी का सेवा करना था, इसके लिए मैंने घोड़ा चोरी किया। तुरंत महाराज उसके पैर पड़े, आज से आप मेरे मंत्री, आज से आप मेरे मंत्री। दिस इज अ ट्रू स्टोरी। घाटम बिकेम घाटम दास। Ghatam. He became Ghatam Das. And believe it or not, उसने एक ही विचार किया, मेरे सिर्फ गुरु के वचन सुनकर मैं एक चोर से मंत्री बन गया, राजा का मंत्री बन गया। अगर कर्म से भी अगर मैं सुधर जाता तो मैं कहां से कहां पहुंचा। प्लीज अंडरस्टैंड, सिर्फ गुरु को वचनों को पालन करके
मैं कहां से कहां पहुंच रहा हूं। मतलब ये यहाँ पे भौतिक फायदा भी है और आध्यात्मिक फायदा भी है इस लीला से। प्लीज अंडरस्टैंड, भौतिक फायदा तो जो गुरु का बात सुनता है कम से कम वो खुश तो रहता है। और रही बात आध्यात्मिक फायदे की, अगर उसने कर्म भी अच्छे किए, गुरु की बात सुनते हुए भी उस कर्म तो गलत था ना उसका, चोरी का काम। अगर वो चोरी नहीं करता, सही ढंग का से रहता, तो वो कहीं का कहीं और पहुंच जाता। So you please understand that one has to have his full faith on God. One has to have full faith on God, but equally more faith on the spiritual master. अगर टीचर के ऊपर, अगर गुरु के ऊपर अगर उसका विश्वास नहीं है और उनके वचनों को वो पालन नहीं करता है, तो भी वो जीवन में सफलता भौतिक में या आध्यात्मिक में, दोनों में नहीं। दिस इज द ट्रू फैक्ट। व्हाट लॉर्ड कैन डू, भगवान कितना तकलीफ उठा सकते हैं। अपने सक्कूबाई की कहानी तो सुनी होगी। क्या है सक्कूबाई की कहानी? क्या है सक्कूबाई की कहानी? किसी को पता है सक्कूबाई की कहानी? हाँ बोलिए। What did she do? सक्कूबाई was staying in the bank of river Kaveri near पंढरपुर। तो उसका एक ही था, मेरा भगवान एक ही है, पंढरीनाथ। पंढरीनाथ को देखने, दर्शन करने जाऊंगी। और ऐसे केस में एक तो सक्कूबाई का कहानी में क्या है, स्पेशलिटी क्या था, हमको क्या सीख मिलती है? हमको सीख ये मिलती है कि जब वो भक्ति करना चाहती थी तो सारे सीरियलों का एक ही विलन होता है, सासू। मैं बाकी जिंदगी का पता नहीं, सीरियल का पता है। उस जमाने से तो सासू मां विलन थी। वो उसको कभी भक्ति करने नहीं देती थी, एक दिन भर काम करवाती थी। एक दिन बेचारी को बहुत इच्छा था मैं पंढरनाथ जाऊं, पंढरपुर जाऊं। तो वहां पे पानी भरने गई, बस साधारण कपड़ों में पानी भरने गई। और वहां पे कुछ लोगों ने कहा चलो पंढरपुर चलते हैं। देखा साधुओं का जमावड़ा जा रहा था, खुश हो गई। तो उसने बोली मैं चलती हूँ, मैं भी चलती हूँ, यहीं से चलती हूँ, घर में जाके बोलूंगी भी नहीं, चलती हूँ यहीं से। बट जब भी आप भक्ति करोगे ना, याद रखना, कुछ लोग हैं जो कभी भक्ति नहीं करेंगे, कुछ लोग हैं जो कभी भक्ति नहीं करेंगे, मगर उनका सीसीटीवी कैमरा हमेशा आपके ऊपर लगा रहेगा। आप कितना भक्ति कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसी पे उनका ध्यान रहेगा। एक औरत ने देखा, तुरंत भाग के गई। और वो तो कभी जाएगी नहीं पंढरपुर, मगर अपने उसकी सासू मां को जाके बोल दिया, देख तेरी बहू देख। क्या है वो डायलॉग वायलॉग बोलते ना वो आप लोग ही बोल रहे अपने अपनी बहू के से, अपने सासू के हिसाब से। तो जाके बोल दिया कि तुम्हारी बहू नाच के जा रही है। हाँ कैसे जा रही है? बेटा जाओ तो लेके आ। बेटा गया, लेके आया, पीट पीट के लेके आया। घर में भी खूब पीटा, बोला ना बोल, मैं पंढरपुर नहीं जाऊंगी। नहीं मुझे जाना है, जाना है। तो कैसी जाती है? देखती हूं। बांध दिया खंबे के साथ, उसको बांध दिया, कस के बांध दिया, बंध गई। फिर भी वो भगवान का इच्छा छोड़ नहीं दी। 2 दिन बिना खाए पिए वहां बंधी रही। सब लोग, किसी को पड़ी नहीं, मगर किसको पड़ी थी? सिर्फ भगवान को पड़ी थी। Only Lord was interested. Immediately one day Lord came in the morning in the form of her mother-in-law. उसकी सासू मां के रूप में भगवान स्वयं आए। और भगवान ने बोला, अरे बहू ठीक है, तुझे देखकर मेरा मन पिघल गया है, तेरी भक्ति देख के, मुझे कुछ खा ले। मुझे कुछ खाना नहीं है माँ, मुझे सिर्फ पंढरपुर जाना है। ठीक है तू जा। भगवान ने उसको बांध के निकाल दिया और वो गई।
अब भगवान को पता है, अब सासू माँ को मालूम पड़ा ये भाग के गई तो वापस बेटे को भेजेगी, पकड़ के लेके आने को बोलेगी, गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ने उसका स्वरूप ले लिया सकुबाई का और वह बंधे रहे। जो 56 भोग खा रहा है वो व्यक्ति 7 दिनों तक बंधा रहा। जो 7 दिनों तक, जो रोज 56 भोग खा रहा है, 7 दिनों तक भूखा बंधा रहा। दैट इज वॉट इज भगवान, दैट इज वॉट इज गॉड। बट दैट इज ओनली द रेसिप्रोकेशन। 2 दिन पहले भक्त को तो भूखा रहना पड़ा, यहां पे 1 दिन एकादशी के बांधे हैं, यहां पे 1 दिन के एकादशी के बांधे हैं, पर पहले 2 दिन तो भक्त भूखा रहा। तब भगवान सामने भक्त के लिए 7 दिन भूखे। So please understand that what we are doing is pseudo devotion or the trailer of devotion. Our devotion will start when we will surrender to God. जब तक हम भगवान को पूरा अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे ना, तब तक भक्ति हमारा अंकुरित नहीं। Everywhere we are interested in material benefits or in praises. Please, it's time that we stop listening our praises and start listening to the praises of the Lord. भगवान के गुणगान सुने या करें। ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स देखने में कोई नाच के गया, कोई लॉजिक ही नहीं। कोई नाच के गया, वो बनाता भी क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हो, राइट? सो इट्स टाइम दैट वी शुड चेंज आवरसेल्व्स। वी कांट चेंज द वर्ल्ड। ऑलवेज रिमेंबर 100 कौरवास वर्सेस 5 पांडवास। हमेशा 100 बुरे के सामने 5 अच्छे मिलेंगे। आपको अगर वो 5 में बनना है तो यू विल हैव टू बिकम more serious in your devotion service. Then you can expect an end like that of Bhishma Pitama. यहाँ पे भगवान स्वयं आएंगे और यहां तक देवी देवताओं से पुष्प वर्षा भी होगी। नहीं तो घर वाले बोलेंगे चलो चलो जल्दी से जला के आते हैं, फिर प्रॉपर्टी का बंटवारा कर, है ना? ये हमारा भौतिक तरीका है। कोई भीष्म पितामह मरने के बाद कोई बोला क्या ऐसा, चलो प्रॉपर्टी का बंटवारा करो? झंझट ही नहीं। That is what is actual fruitful life, living a fruitful life or living a life with some substance. Otherwise बाकी जीवन तो जानवर भी जी लेते हैं। Okay, with this we'll like to stop our class today over here and we'll continue from this point. Anybody has got any